شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک خوبصورت سا گھر، دو پیارے ایک دوسرے کو ازحد چاہتے میاں بیوی، ایک ساس، ایک نند، ایک دیور جو کہ کچھ سالوں بعد اس کا بہنوئی بھی بن جائے گا۔ ایک پرفیکٹ زندگی جو اس نے چاہی تھی۔ صبح سویرے وہ الارم کے ٹن ٹن پر اٹھتی، پورے 5:30 بجے، نہ آگے نہ پیچھے، نماز پڑھ کر ایک پارہ تلاوت کرتی، پھر کچن میں جا کر ایک چولہے پر چائے چڑھا کر اور ایک پر پراٹھوں کے لیے توا رکھتی۔ جب معظم گھر آ جاتا نماز پڑھ کر تو تایا اور اب معظم کے لیے ناشتہ نکال دیتی، کیونکہ دونوں نے جاب پر جانا ہوتا تھا۔ آج مونا اس کے گھر آئی ہوئی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ محتشم بھی آنے والا ہے۔ مدحت اور مونا بیٹھے ہوئے مونا کی موبائل پر معظم کی شادی کی تصاویر دیکھ رہی تھی اور ہر ایک تصویر پر کمنٹس پاس کر رہی تھی۔ انا کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ میں موبائل پر معظم کے ساتھ میسیجز پر باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھو نعیمہ پھپھو کے کارنامے، ویسے ان کو پتہ چل گیا نا تو مجھے کچا چبا جائیں گی کہ میں نے ان کی واردات پکڑ لی تھی۔ مونا نے ہنستے ہوئے مدحت کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا۔ تصویر میں نعیمہ پھپھو ایک بڑے سے پتیلے میں ڈھیر سا قورمہ نکالے کچن کے کیبنٹ میں رکھ رہی تھی اور پیچھے مڑ کر تصدیق کرنے کے لیے دیکھ رہی تھی کہ کسی نے پکڑ تو نہیں لی ان کی چوری۔ پیچھے تائی نے موبائل پر سر جھکا کر دیکھا، مجھ سے تو شکوہ کر رہی تھی کہ فہمی سب کچھ اپنے میکے بھجوا دیا اور ہمیں کیا ملا، لوگوں سے بچا ہوا قورمہ اور تھوڑے سے چاول، یہ پھر سے کسی کے سامنے یہ کہے میں یہ تصویر دکھا دوں گی۔ فہمی تائی کو ایک دم غصہ چڑھا۔ مونا نے جلدی سے موبائل بند کیا۔ پلیز تائی یہ مت کہیے گا، ابو کو پتہ چل گیا تو مجھ سے موبائل، لیپ ٹاپ سب کچھ چھین لیں گے۔ چلو نہیں بتاتی میں۔ محتشم آیا نہیں ابھی، اس کی 2 ہفتے کی چھٹی ہے، تم سب گھومنے کا پروگرام بنا لو۔ یہ ہنی مون ونی مون ہمارے خاندان میں ہوتا تو نہیں، اس لیے تم سب بھی چلے جانا اسی بہانے ایک ساتھ۔ فہمی تائی نے مسکرا کر سب کو سرپرائز پلان پہلے سے ہی بتا دیا۔ دونوں نے خوشی سے چیخ ماری۔ انا بھی ان کی چیخ پر دوڑتی چلی آئی۔ اوہ ڈرا دیا، میں سمجھی تم دونوں میں کسی کو بجلی نے پکڑ لیا، ہم مری جا رہے ہیں۔ دونوں نے پھر سے بچوں کی طرح جوش میں آ کر چیختے ہوئے اس کو بتایا۔ ہمارے ساتھ جانے کے بہانے آپ دونوں میاں بیوی ہنی مون بھی منا لیں گے۔ انا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا کیونکہ یہ اسی کا تو بنایا پلان تھا۔ آج صبح وہ لیٹ اٹھی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی لیکن وہ نظر انداز کرتی رہی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ صبح ہلکا ہلکا بخار تھا، پھر بنا کوئی کام کیے اتنی تھکن تھی۔ فہمی تائی اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کے یہاں سے ہو کر آئیں تو معظم بھی آیا ہوا تھا اور تشویش سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ مدحت اور مونا نے بتایا تھا نا کو کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ اس کا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں۔ پھر اس کو مسکراتے شرماتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا۔ سارے خاندان میں بات پھیل گئی۔ تائی اٹھتے بیٹھتے نعیمہ پھپھو کو کوستی رہتی۔ پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ بھی ہے کتنی جلد نظر لگ جاتی ہے کہ بھائی شازیہ نعیمہ کی نند کی بہو کے 7 ماہ ہو گئے اور ابھی کچھ نہیں ہے، اور معظم کی دلہن پہلے ماہ ہی۔ امیاں بلا وجہ کیوں اپنا بی پی ہائی کرتی رہتی ہیں؟ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق کا ورد کرتی ہے، اس پر کسی کی بھی بری نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ الٹا آپ کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ مدحت ہر بار ان کو دلاسا دیتی لیکن اکثر کوئی ایسا جملہ کہہ جاتی کہ تائی جن کا بلڈ پریشر ویسے بھی چڑھا ہوتا تھا اور زیادہ شوٹ کر جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ تائی کی اڑتی ہوئی چپل اس کے پیچھے آتی، وہ اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ تائی کا موڈ خراب ہو جاتا، برقع لے کر گھر سے باہر نکل جاتی، کبھی شمائلہ کے گھر، کبھی کسی چاچا کے گھر۔ مدحت اور تائی کوئی روایتی ساس اور نند نہیں تھیں، وہ باپ کے گھر سے بیاہ کر تایا جیسے باپ کے گھر آئی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، پتہ نہیں یہ مارننگ سکنیس اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دی تھی۔ اس دن نعیمہ پھپھو آئی ہوئی تھی۔ تائی قرآن مجید کی تلاوت ختم کر کے اٹھ ہی رہی تھی کہ پھپھو آ گئی۔ قرآن مجید شیلف پر رکھ کر وہ باہر صحن میں بچھائی گئی چارپائیوں کی طرف آئیں۔ پھپھو کا ارادہ تو ویسے سون گن لینے کا تھا لیکن تائی کا حال پوچھنے لگی۔ شمائلہ آئی تھی کل، بتا رہی تھی کہ تمہاری شوگر کافی بڑھ گئی ہے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا کہ بھائی یک کے بعد دیگرے جو خوشیاں مل رہی ہیں فہمی کو، میٹھا کھا کھا کر تو شوگر بڑھنا ہی تھی۔ تائی نے جبراً مسکرا کر کہا ہائے نعیمہ، ماشاء اللہ تو ساتھ کہا کرو۔ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، اب میں نے اپنے جان سے پیارے بھتیجے کو نظر تھوڑی لگا دینی ہے۔ انا کہاں ہے؟ ماں کے گھر تو نہیں دکھی۔ نعیمہ کا ارادہ بھاپ گئی تائی۔
नईमा फुप्पो की आंखें किसी अल्ट्रासाउंड मशीन से कम नहीं थीं। चाची का बेटा होने से पहले उन्होंने बता दिया कि इनका बेटा होगा। कभी किसी अलामत से अंदाज़ा लगा लेती, कभी किसी अलामत से, और हर बार उनकी पेशन गोई सच साबित होती थी। सो रही है। एक तो आजकल की लड़कियां भी ना इतनी कमज़ोर, एक हमारे ज़माने की लड़कियां थीं। याद है जब नाजिम के वक्त तुम कैसे भारी भारी काम करती थीं, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और नाजिम भी माशाल्लाह सेहतमंद हट्टा कट्टा पैदा हो गया। मुस्कुराते ताई अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। नईमा फुप्पो भी फहमी ताई की बातों में पिन्हा तंज भांप गई। इसी वक्त अना भी बाहर कमरे से निकली। मिधत ऊपर अलगने से कपड़े उतार रही थी। फुप्पो को सलाम करती वो किचन में चली गई। उनके लिए वो 2 कप चाय बना कर लाई। चाय पीते हुए नईमा की नज़रें अना पर जमी थी। ताई ने अना को किसी काम से किचन भेज दिया ताकि उनकी बुरी नज़रों से बच सके। इसका 5वां महीना शुरू हो चुका था। रात के 9 बज रहे थे। अम्मी अना के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। मोना किचन में खड़ी बर्तन रख रही थी। अतीक ऊपर जा रहा था और अब्बू बैठे परी से बातें कर रहे थे कि ऐसे में दरवाज़ा खोल कर आती फूली सांसों के साथ मिधत चीखी, मुबारक हो चाचा, आप नाना बन गए। कुछ देर बाद सब ताया के घर में बैठे हुए थे। वहाब और शहाब दोनों सबके घरों में खुशखबरी सुनाने चले गए थे। जब लौट कर आए तो दोनों के हाथों में 3-4 हज़ार जमा हो चुके थे। मिधत मोहतशिम को फ़ोन कर रही थी, लेकिन इसका फ़ोन मसरूफ़ था। सामने देखा तो मोना की मोबाइल से परी पहले ही इसको फ़ोन कर चुकी थी। जी मोहतशिम भाई, आप चाचू बन गए। अरे कसम अल्लाह पाक की, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आपने मुझे अब खुशखबरी के पैसे देने, ठीक। इसी दौरान मिधत को मौज़म भाई की कॉल आ गई। किस पर गई है? खूबसूरत है, मुझे जल्दी तस्वीर व्हाट्सएप करें। मिधत ने सलाम दुआ किए बगैर कई सवाल एक साथ कर दिए। मुबारकबाद तो दो पहले, मौज़म ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई मुबारक हो, अब बताएं। नाक तो तुम्हारी तरह है और आंखें भी तुम्हारी तरह, होंठ तो हू बहू तुम्हारी कॉपी हैं, और मुझे तो अच्छी नहीं लगी तुम्हारी तरह। मौज़म का लहजा साफ बता रहा था कि वो मजाक के मोड में था। इसने फ़ोन काट दिया। मिधत मुस्कुराई, मतलब मेरी तरह खूबसूरत है। रात आंखों में कटी सबकी, किसी को भी खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 8 बजे मोहतशिम भी हाजिर था। शुमाइला बज्जो बता रही थी जब अना लेबर रूम में थी तो बाहर ताई और चाची रोए जा रही थी। एक तेज़ तर्रार ऊंची आवाज़ वाली खाला उन पर चीखें कि बीबियो, हौसला देने आई हो या हौसला कम करने। सुबह 11 बजे वो आ गए। इनके आने से पहले तीनों चाचियाँ फजीलत फुप्पो नईमा फुप्पो हाजिर थीं। नईमा फुप्पो का अंदाज़ा इस बार भी सही हो गया था, इसीलिए शौक से बता रही थी, भाई मैं तो कह चुकी थी कि जिस रग़बत से ये चाय पीती है तो पक्का बेटी होनी है। मुझे भी जुनैरा के वक्त चाय बहुत पसंद थी और नाजिम के वक्त कहवा। मैंने तो साफ कह दिया फहमी को कि पोती होगी। ऊपर से मुझसे खफा हो गई कि पोते का क्यों नहीं कहा। भाई मैं नजूमी थोड़ी हूँ, बस अलामात देख कर बता दिया। अंदर मिधत और मोना अना से बातें किए जा रही थी। मौज़म भाई तो पहले ही मुझसे कह चुके थे कि अगर बेटा हुआ तो फारिस और बेटी हुई तो खुशबख्त नाम रखूँगा। मतलब तुम्हारा वो तालिया का ड्रीम नेम गया। मोना इसको याद दिला रही थी। वो मुस्कुराई, खुशबख्त भी तो काफ़ी प्यारा नाम है। ज़िंदगी एकदम से बदल गई, बिल्कुल एकदम ही। एक नया रिश्ता था, प्यार का, ममता का। इसको लग रहा था जैसे इसने सारी ज़िंदगी खुशबख्त के साथ गुजार दी हो। शुमाइला बच्चों के बच्चे भी थे, लेकिन वो दूसरे घर में थी, इसलिए सब ने वो तजर्बा नहीं किया जो अब कर रहे थे। नवज़ायदा बच्चे की देखभाल सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब भी कुछ हो जाता था तो मिधत जल्दी से चाची वगैरह को बुला लेती थी और फिर अम्मी पर गुस्सा होती थी। आप वाहिद दादी हैं जिनको कुछ नहीं आता होगा, ना ही तेल लगाना, ना ये मालूम है कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। पता नहीं हमें कैसे पाल लिया। अब ये डायपर तो पहना सकती हैं ना, या अमीना चाची को बुला कर लाऊं। ताई सर खुजाते हुए कहती, भाई हमने पाल लिए, बस पाल लिए। अब 20-30 साल हो गए, नहीं याद कुछ भी। मुझे तो क्या करूं। मिधत नाक सुकेड़ कर तासुफ से देखती। मिधत इसके पास सोती थी। नौज़ायदा बच्चे के साथ तो नींदें हराम करनी पड़ती हैं। रात को मिधत लैपटॉप पर अना के जमा किए गए कोरियन ड्रामे देखती थी और जैसे खुशी की री री शुरू हो जाती थी तो थकी हारी अना को उठा देती और वो फीड करवा देती थी। मौज़म को भी इस नए एहसास ने एक नए जहाँ के दर्शन करवा दिए थे। वो घंटों खुशी के पास बैठा होता था और इसको तके जाता था।
और वो जो भी मुस्कुरा भी नहीं सकती थी, बाप को तके जाती। अकीका कब कर रहे हो? शुमाइला बज्जो ने मुअज्जम से पूछा। शुमाइला बज्जो आती थी लेकिन बच्चों को लेकर नहीं आई थी। इतवार के दिन वो अपने बाप के साथ घूमने गए थे। मैं तो मदरसे में पैसे देना चाह रहा था लेकिन अम्मी कह रही थी कि अकीका तो होगा। मुस्कुरा कर इसने अम्मी की सख्ती से कही गई बात बता दी थी। इसी वक्त फहमी ताई भी कमरे में दाखिल हुई। क्यों ना करूं मैं अकीका, पहली पोती है मेरी। तुम्हारी दादी कहती थी कि पहले बेटी हो या बेटा, इस पर सारे अरमान निकालने चाहिए। और ये जो इतने सारे लोगों के अकीकों में पैसे दिए हैं, तोहफे दिए, अब इनके लेने का वक्त आ गया तो मैं अकीका ही ना करूं। याद है नईमा के सभी बच्चों पर मैंने खूब पैसे उड़ाए। अमीना के बेटे पर तो सोने की अंगूठी भी दी थी, उन्होंने सारा हिसाब कर रखा था। हाँ तो कर लें, कौन सा मैंने मना किया है। मुअज्जम हंसते हुए कह रहा था कि अम्मी के चेहरे के जाविये बहुत मज़ाहिया दिख रहे थे। और वो जो रात को बाप के कान भर रहे थे वो, कि अब्बू दुनिया के दिखावे के लिए कर रहे हैं सब, ये इतना खर्चा करेंगे फिर भी कोई ना कोई खफा होकर चला जाएगा। ताई इसकी नकल उतारते हुए कल की बात दोहराने लगी। वो कहा लगाने लगा। शुमाइला बज्जो भी हंस रही थी। हाँ तो गलत थोड़ी कहा है मैंने, क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की। उठो और दही लाओ। अम्मी ने बहस ख़त्म की और इसकी दुखती रग पे हाथ रखा। इसके चेहरे से आन की आन में मुस्कुराहट गायब और नाक भूँ चढ़ाकर नाक सुकेड़ कर पाँव पटकता चला गया। पीछे दोनों माँ बेटी हंसती रहीं। जब वो दही लेकर आया तो सब खुशी के गिर्द बैठे हुए थे और सब इस बहस में मशगूल थे कि ये नन्ही गुड़िया किस पर गई थी। नाक, कान, होंठ, आँख, सभी पर सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी। ज़िंदगी खूबसूरत रह गुज़र पर गामज़न थी, एक सीध में चलती ट्रेन जैसी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अकीका भी खैर से हो गया। मोहतशिम की ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई और इसको खुशकिस्मती से नौकरी जल्दी मिल गई थी। ताई चाह रही थी कि अब मोना के सेमेस्टर के पेपर्स होने के बाद वो इसको भी जल्दी ब्याह कर ले आए। उन्होंने नईमा फुप्पो के बेटे के लिए भी हाँ कह दी थी, लेकिन मिद्दत की शादी में अभी वक्त था कि नाज़िम कनाडा पीएचडी करने चला गया था। अब इसके आने के बाद ही उनकी शादी होना थी। खुशी 6 माह की हो गई। अब वो खुलकर रोती भी थी और खी खी करती हंसती भी थी। जनवरी की सर्द शाम थी, हवा सर्द और खुश्क थी। वो अम्मी के घर से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुअज्जम मिल गया। वो भी जॉब से लौट कर आ रहा था। अनाज से खुशी को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन अनाज जल्दी ही वापस ले ली। ताई कहती हैं कि शाम को बच्चे को छुपाना चाहिए। खुशी को चादर में छुपाते हुए इसने वजह बताई। क्यों भला? ये ताई से पूछ लेना। अम्मी और अम्मी की पुरानी बातें। घर तक पहुंचते हुए खुशी सो चुकी थी। वो दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए तो मोटर से कूलर भरती मिद्दत ने सलाम से पहले इसको छेड़ा। घर आने से पहले ससुराल में हाजिरी दे आए? वाह भाई। हाँ तो क्या तुम्हारे ससुराल चला जाता जहाँ तुम्हारी सास मुझे सिर्फ बातों पर टरखाती रहती। अना दोनों बहन भाई को लड़ता छोड़कर अंदर चली गई। खुशी को बेबी कार्ट में लिटाया। मुअज्जम कमरे में आया, इसको प्यार किया। अना, मैं कल दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मेरा तो खुद भी दिल नहीं है लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। मुअज्जम अना को बताने लगा। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? इसने हंसकर पूछा। दोनों ही समझो। चले जाएं अगर वो इतना कह रहे हैं। वैसे मैं और मिद्दत ने सोचा था कि हम कल किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने। इतने दिनों से प्लान कर रहे थे। हाँ तो हम रात को चले जाएंगे ना, अगर मैं लेट ना हुआ तो। मुस्कुराते ऑफ़र की और अंदर चेंज करने चला गया। सुबह वो उठकर खुशी को गोद में लिए से बातें कर रहा था। अना और मिद्दत मामूल के कामों में लगी थी और फहमी ताई मोहतशिम के साथ फिर से किसी खाला के घर जा चुकी थी। खुशी इसकी छोटी छोटी बातों पर हंसती जा रही थी। वो क्लिक क्लिक करता इसकी ढेर सारी तस्वीर लिए जा रहा था। कुछ देर बाद इसके दोस्त वगैरह इसके घर के सामने खड़े थे। अरे मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ हूँ और ये वेले आ गए। खुशी को जल्दी से बेबी कार्ट में रखते हुए बुड़बुड़ाया। बाहर निकल कर देखा तो सब तैयार खड़े हुए थे। इसको आता देख अजीम से ने पूछा, तुम अभी तैयार नहीं हुए या तुम्हारे जाने का दिल नहीं कर रहा? वल्ला जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ज़ुबैर आगे बढ़कर इसको अंदर धकेलने लगा। छोड़ो, अगर दिल नहीं कर रहा इसका तो खैर है, हम फिर चले जाएंगे। अजीम ने इसके चेहरे पर छाई पज़मोर्दगी देख कर कहा। वो मुस्कुराया और आता हूँ कहकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर उनके सामने खड़ा था। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी खुशी, खुशबख्त,
अना दोपहर का खाना बनाकर कमरे में आई। खुशी सो रही थी। ताई इसके पास बैठे हुए इसको झूले दे रही थी। इसने मोबाइल निकाल कर देखा तो मुअज्जम ने स्टेटस लगाया हुआ था व्हाट्सएप पर। आज ही खुशी की ली गई तस्वीर थी और साथ में इस पे कैप्शन डाला हुआ था। इसके साथ अपनी आउटिंग की नई तस्वीर डाली हुई जिसमें वो मुस्कुराकर सेल्फी ले रहा था। इनसे दूर गाड़ी में बैठे हुए 4 दोस्त बातों में मशगूल थे। वो ड्राइव वाली फ्रंट सीट में बैठा था। अजीम गाड़ी चला रहा था और पीछे ज़ुबैर और इलियास बैठे हुए थे। इसने स्टेटस जैसे ही लगाया सबसे पहले सीन अना की तरफ से आया। वो मुस्कुराया और फिर खुशी की तस्वीर देखने लगा। वो मुस्कुरा रही थी और दोनों हाथ उठाए हुए थी, यूं जैसे कह रही हूँ कि मुझे गोद में उठाओ। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसे में आन की आन में बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। सामने से तेज़ी से आता ट्रक दिखाई दे रहा था। ट्रक में शायद मार्बल्स थे और टर्न लेने लगा दफातन। पीछे से ज़ुबैर चीखा, अजीम सामने देखो, सामने। इसकी आवाज़ बीच में रह गई और तेज़ी से आता ट्रक उनकी गाड़ी के मुअज्जम की साइड से टकराया और दूसरी जानिब से एक और गाड़ी मुअज्जम ज़ुबैर वाली साइड से टकराई। मुअज्जम के हाथ से मोबाइल गिरा और आन की टूटे मोबाइल स्क्रीन जिस पर अभी भी खुशी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, खुशी की तस्वीर इसके बाप के खून से छुपने लगी। बाहर तड़ बारिश बरस रही थी और इर्द गिर्द टायरों की चरचराहट, लोगों का शोर एकदम उठा। उनके गिर्द लोग जमा हो रहे थे। मुअज्जम का जहन किसी तारीकी में डूब रहा था। उसका दिल डूब रहा था, यूं जैसे किसी ने उसके दिल में नुकीला खंजर घोंप दिया हो। इसने बंद होती आंखों से देखा तो वो नंगे पांव दौड़ रहा था। पीछे अम्मी इसको बुला रही थी और फिर तपती दोपहर में बाहर खेलने जा रहा था। फिर इसने मिदहत और मोहतशिम के साथ खुद को खेलते देखा, जो इसको बॉल करवा रहे थे और वो बार बार आउट हो रहा था और बैटिंग नहीं कर पा रहा था। इसने देखा कि अना से कह रहा था कि वो रहे ना रहे लेकिन वो खुश रहे। इसने ये भी देखा कि हॉस्पिटल में कोई इसको कह रहा था कि इसकी बेटी हुई है, प्यारी सी गुड़िया। डूबते दिल, छाते अंधेरे में इसने आखिरी बार देखा कि वो अंदर किसी जगह है। इसके गिर्द मास्क लगाए लोग खड़े। फिर इसका जहन डूबने लगा। वो खुशी पर झुका इसके गाल चूम रहा था। खुशी खिलखिला रही है, इसकी तरफ हाथ उठाए हुए हैं। अना ताई के कमरे में दस्तरखान लगवा रही थी। ताया नमाज पढ़कर आ रहे थे। इसी दौरान ताई और मोहतशिम भी आ गए, हाथ में डिश लिए। मिदहत ने माँ से पूछा, खाला ने खाने पर ठहराया नहीं क्या? इतना इसरार कर रही थी, जाने क्यों मेरा दिल आज इतना उदास क्यों है? वहशत सी हो रही थी। उनके घर इसीलिए फ़ौरन चली आई। ताई के चेहरे पर पज़मुर्दगी छाई हुई थी। मिदहत ने ऐसा देखा जैसे कह रही हो कि बहाने बना रही हैं अम्मी। दरवाजे से वहाब की आप पी की आवाज़ आने लगी। मिदहत बाहर निकली। निकल कर पूछा, क्या हुआ? बाहर किसी ने वहाब को कह दिया होगा कि जाकर बता दो मुअज्जम का एक्सीडेंट हुआ है। जिसने भी बताया था वो नहायत कम अकल इंसान होगा कि बच्चे को बता दिया। वो फ़ौरन उनके घर आ गया। मिदहत बाजी, वो ज़ुबैर का भाई आया था कि मुअज्जम भाई का एक्सीडेंट हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में है। हाथ में डोंगा पकड़े मिदहत के पांव तले ज़मीन खिसक गई। इसके हाथ से डोंगा गिरा और एक दिल खराश चीख निकली। आन की आन में सारे घर में खबर फैल गई कि मोहतशिम ने माँ को संभाला। अम्मी, कुछ नहीं हुआ है, सब्र करें, दुआ करें। वो धड़कते दिल से माँ को टूटा फूटा हौसला दे रहा था और सबको फ़ोन करके इत्तला भी दे रहा था। अम्मी, मुझे अस्पताल जाना है। अम्मी, मुअज्जम। सीमा आई तो वो रोते हुए इनसे इल्तिजा कर रही थी। मोना पीछे खड़ी रोती खुशी को सहला रही थी, जिसको ये नहीं मालूम था कि इसका बाप मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। आदिल चाचा आए, उनकी हालत भी बिगड़ी हुई थी। सब दुआ करें, आईसीयू में है वो। सब ने मदरसे बच्चों की तरफ तकलीद की। उठे, कुरान उठाकर तिलावत करने लगे, नवाफिल पढ़ने लगे। ताई बाहर सहन में बसा आसमान को देखे जा रही थी, जबकि अना रोते हुए कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। इसको ये भी नहीं पता था कि क्या पढ़ना है। इसको इस हालत में इसकी रवां दवां ज़िंदगी में तूफ़ान कैसे दबे पाँव आया, इसको पता भी नहीं चला। असद चाचा मोहतशिम को फ़ोन मिला रहे थे। आदिल चाचा मोहल्ले के हाजी अजीज़ साहब से कह रहे थे कि इसकी हालत बहुत सीरियस है और ज़ुबैर की, बाकी दो को थोड़ी सी खराशियाँ आई हैं। असद चाचा ने आदिल को बुलाया और कहा, मैंने इजहार पड़ोसी से पूछा है, इसकी वहीं ड्यूटी होती है। इसने बताया कि मुअज्जम आईसीयू में दाखिल होते ही दम तोड़ चुका था। भरे गले और भरी आंखों से इस वक्त भतीजे की मौत की खबर सुना रहे थे, जो इनकी गोद में पला बढ़ा था।
حقیقت بھی کتنی اذیتناک ہوتی ہے۔ یوں دبے پاؤں مسلط ہو جاتی ہے اور پھر ہر وقت یہ باور کراتی ہے کہ میں ہوں، مجھے مان لو۔ اذیت بھی دیتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ حقیقت ان پر مسلط ہو گئی۔ گھر میں ابھی کوئی نہیں گیا تھا جب قیوم نے اسد کو بتایا کہ گھر میں اطلاع کر دو۔ تبھی عادل چاچا اندر چلے گئے۔ ان کو آتا دیکھ کر مدحت فوراً اٹھی اور ان کے پاس گئی۔ اس کی حالت اور معظم کی موت نے چاچا کو بھی اتنا ہلا کر رکھ دیا تھا کہ جب سب کی روتی آنکھیں ان کی جانب اٹھیں تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھے اور رونے لگے۔ مدحت چیخی، سب باہر صحن میں آ گئے۔ تھوڑی دیر میں سب کو خبر ہو گئی تھی معظم اس دنیا میں نہیں رہا۔ آدھے گھنٹے بعد صحن کے عین بیچ میں چارپائی پر میت رکھی گئی۔ جو کچھ ہی گھنٹوں اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ اس دنیا سے یہ کہتے چلا گیا کہ اس دل میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چارپائی پر بازو کے ساتھ زمین پر فہمی تائی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، بالکل خشک، یوں جیسے ان کی آنکھوں میں آنسو سوکھ گئے ہوں۔ انا بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور جیسے ہی ہوش میں آتی امی کے گلے لگتی اور روتے ہوئے کہتی، امی بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا صبر۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس پر کوئی جھوٹ حاوی نہیں ہو سکتا۔ آج رسم کل بھی ہو گئی۔ انا کو نیند کی گولیاں دی گئی تھیں۔ وہ 2 دن سے بالکل نہیں سوئی تھی۔ خوشی کو مونا سنبھال دی تھی۔ تائی چپ تھی اور جو بھی تعزیت کرنے آتا وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے بس خاموشی سے ان کو دیکھتی سنتی۔ ایک اچھی خاصی روٹین میں چلتی زندگی کو ایسا دھچکا لگا کہ اب اس روٹین کے لیے کئی برس درکار ہوں گے۔ رسم کل بھی ہو گیا، پھر 40واں بھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی یادیں اور پختہ ہوتی جا رہی تھیں۔ دکھ بہ روپ تھا، ہر دفعہ ایک نئے روپ میں اس پر حاوی رہتا۔ ڈپریشن، بے خوابی اتنی بڑھ گئی کہ تائی نے اس کی گرتی صحت پر پہلے تو ان تنہائی میں خوب آنسو بہائے، پھر اس کو ڈانٹا کہ خود کا خیال رکھے نہ رکھے، خوشی کی خاطر اپنا خیال رکھے۔ وہ رو دی تھی، مجھ سے بھولتا نہیں تائی، وہ میرے خیالوں پر قابض ہے ابھی بھی۔ جب جب اس کی خون میں لت پت تصویر دیکھتی ہوں، کسی جاننے والے فیس بک پر اپلوڈ کر دی تھی ایکسیڈنٹ کی تصویر، میری حالت نزا جیسی ہو جاتی ہے۔ تائی صابر دکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ مدحت کی حالت ایسی ہی تھی۔ دوسری طرف محتشم کو جیسے چپ نے آن لیا تھا۔ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں ہو رہا ہے یا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے۔ دن، شام، رات کیسے گزر رہے تھے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مونا، سیما بھی آ جاتی ان کے گھر۔ جوان بیوہ بیٹی کا دکھ سمندر سے زیادہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ جب انا کی عدت پوری ہو گئی، پھر خاندان میں گھر گھر تبصرے شروع ہو گئے۔ انا اور محتشم کا نکاح۔ عدت کے فوراً بعد فرقان قیوم کے گھر چلے گئے، نکاح کی بات کی، اور ان کے ہر لفظ سے یہ ظاہر تھا کہ وہ کتنی ہمت مجتمع کر کے ایک ایک لفظ کہہ رہے ہیں۔ انا میری بیٹی ہے اور مونا بھی۔ مونا کا نصیب اللہ اور بھی بہتر کر دے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ انا میرے گھر سے نکلے۔ وہ شادی نہ بھی کرے تو بھی مجھے قبول ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انا اور محتشم کا سادگی سے نکاح ہو۔ مونا کو بلاؤ، اس سے ایک بار پوچھ لیتے ہیں۔ تایا فرقان نے عتیق کو کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر محتشم کو قبول۔ قیوم صاحب کہنے لگے تو فرقان تایا نے ان کا جملہ بیچ میں کاٹ دیا، ضرورت ہے، بلاؤ۔